Hello children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 5, understanding elementary shapes, and this is class 6 NCERT maths. We are going to do exercise 5.6. Class we learned about the classification of triangles. We learned about what is a scalene triangle, what is isosceles triangle, what is an equilateral triangle. These are based on the sides. Okay, then we learned triangles based on their angles also. That is acute angled triangle, obtuse angled triangle, then right angled triangle. Okay, ये सब हमने learn किया था previous class में. Hope you have revised the previous topic. I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 5, and you can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. So let's start. Hope you are thorough with the classification of triangles. Okay, related to that only we are going to do this exercise. That is exercise 5.6. Okay, first question, name the types of the following triangles. That is we have to find the types of triangle. Okay, कौन सी टाइप का ट्रायंगल है वो हमें फाइंड करना है. ओके, इसमें तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है. देन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ, क्योंकि आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ट्रायंगल्स सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, ए ट्रायंगल विद लेंथ्स ऑफ साइड्स 7 cm, 8 cm and 9 cm. ट्रायंगल की लेंथ उन्होंने दिया है, दैट इज साइड 7 cm, 8 cm and 9 cm. ये सारे जो साइड्स है वो अनइक्वल साइड्स है. देखने से आपको पता चल रहा है ना, 7 cm, 8 cm, 9 cm, कोई भी दैट इज जो सेंटीमीटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है. दैट इज दे आर अनइक्वल. सो वैसे अनइक्वल ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, स्केलिन ट्रायंगल ऐसे ही होता है. ओके ओके, सो ये अनइक्वल साइड्स का मैंने ड्रॉ किया है. स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ कर दी. ओके, वी विल मार्क द साइड्स आल्सो. एक तो 9 सेंटीमीटर का है, देन दिस इज 8 सेंटीमीटर, देन एक और साइड है 7 सेंटीमीटर. जो कम वाला है वो 7 सेंटीमीटर का मैंने मार्क किया है. ओके, सो आपको देखने से क्या पता चल रहा है? तीनों जो साइड्स है वो अनइक्वल है. इट इज नॉट एट ऑल इक्वल. सो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ स्केलिन ट्रायंगल. ओके, सिंस all the sides of a triangle are unequal, therefore the triangle is a scalene triangle. इसको हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है. ओके, नेक्स्ट बी ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 7 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर. सो वी विल ड्रॉ अ रफ ट्रायंगल. I have drawn a rough diagram. Okay, ये तीनों जो मेजरमेंट दिया है कोई भी इक्वल नहीं है. देखने से आपको पता चल रहा है ये जो ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट दिया है वो देखने से आपको पता चल रहा है इट इज नॉट इक्वल. तीनों साइड्स इक्वल नहीं है. आई विल एक्सप्लेन विद द डायग्राम आल्सो. ओके, सो ए बी इज 8 सेंटीमीटर, ए बी सी. ओके, ए बी इज 8.7 सेंटीमीटर, देन ए सी, दिस इज ए सी इज 7 सेंटीमीटर, then BC is 6 सेंटीमीटर. ओके, सो इसमें देखने से आपको पता चल रहा है सारे जो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो इज नॉट इक्वल. दैट इज 8.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी विल राइट हियर, सिंस so this triangle is called as scalene triangle. Okay, since all the sides of a triangle are unequal, therefore the triangle is a scalene triangle. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? Scalene triangle बोलते हैं. Okay, so this triangle is a scalene triangle. Okay, next see triangle PQR such that PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 सेंटीमीटर. ओके, सो इसमें देखने से पता चल रहा है सारे जो साइड्स है वो इक्वल है, क्योंकि मैंने बोला है PQ is equal to QR is equal to PR is equal to क्या है 5 सेंटीमीटर. ओके, all the sides are equal, it is called as an equilateral triangle. All the sides are equal, then it is called as an equilateral triangle. Okay, so equilateral triangle कैसे होता है? ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल. सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होता है. ओके,
So we will mention this as PQR. Okay, so सारे जो sides है PQ 5 centimeter है, then QR is also 5 centimeter, then PR ये भी 5 centimeter का है. So all the sides are equal है. Okay, since all the sides are equal, therefore triangle PQR is an equilateral triangle. Okay, so all the sides are equal, then it is called as an equilateral triangle. Okay, next D. Triangle DEF with M of angle D is equal to 90 degree. Okay, ये एंगल का दिया है, so we have to do accordingly. Okay, एंगल का हमें मेजर करना है. अगर 90 डिग्री का एंगल है, okay, then that is a right angled triangle. Okay, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, it is called as a right angled triangle. देखने से क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है. Then also explain with the diagram ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so we will draw a triangle. Okay, right angle triangle हम draw करेंगे. Okay, so this is marked as क्या है 90 डिग्री उन्होंने बोला है. ओके, सो 90 डिग्री मींस राइट एंगल ट्रायंगल है. ये डी, ओके, देन ई एफ. सो ट्रायंगल डी ई एफ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल डी क्या है? एंगल डी इसमें आना चाहिए तभी वो 90 डिग्री बनेगा. ओके, एंगल डी इज 90 डिग्री. ओके, सिंस एम ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore triangle DEF is a right angled triangle. Okay, next E, triangle XYZ with M of angle Y is equal to 90 degree and XY is equal to YZ. अगर एक एंगल 90 डिग्री है then it is called right angled triangle. बट इसमें ये भी दिया है XY is equal to YZ. Okay, अगर दो साइड्स इक्वल है then it is called isosceles triangle. So इन दोनों को मिला के हम कैसे लिखेंगे? Isosceles right triangle लिखेंगे. Okay, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, इसमें ये है 90 डिग्री का है. ओके, दिस इज y. ओके, सो x y z. ओके, सो x y इज इक्वल टू ये क्या है y z. ये दोनों इक्वल है. ओके, सो अगर ये दो साइड्स इक्वल है एंड एंगल 90 डिग्री बन रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. ओके, सिंस m ऑफ एंगल y is equal to 90 degree and xy is equal to yz, that is two sides of a triangle are equal, therefore triangle XYZ is an isosceles right triangle. Okay, so this triangle is called an isosceles right triangle. Okay, next F, triangle LMN with M of angle L is equal to 30 degree, M of angle M is equal to 70 degree, then M of angle N is equal to 90 degree. Okay, so इसमें सारे जो एंगल्स हैं वो अलग अलग है ना. एक भी एंगल इक्वल नहीं है, एक दूसरे की इक्वल नहीं है. एंड ये जो एंगल्स उन्होंने दिया है वो सारे जो एंगल्स है 90 डिग्री से कम है. 80 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री. अगर 90 डिग्री से कम है देन इट इज एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल. अक्यूट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे. इसका जो एंगल्स है वो सारे क्या है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ओके, सो वी विल मार्क इट L M N. एंगल ऑफ L क्या है? L इज 30 डिग्री. देन एंगल ऑफ एंगल ऑफ M इज 70 डिग्री. देन एंगल ऑफ N इज 80 डिग्री. ओके, सारे एंगल्स अलग अलग हैं, सो इट इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल. सिंस ऑल द angles of triangle LMN are unequal, therefore triangle LMN is an acute
angled triangle. So this triangle is called as an acute angle triangle. Okay. Next question number 2. Match the following. Okay, match the following तो बहुत easy है. आप लोगों को अभी अच्छे से पता चल गया होगा. What is a scalene triangle? What is an isosceles triangle? Then equilateral triangle, then right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle क्या होता है वो सब आपको अच्छे से पता चल गया होगा. Okay, so now we are going to match the following. Okay, एक साइड उन्होंने दिया है measures of triangle, triangle की measures दिया है. दूसरी साइड types of triangle, वो कौन सी टाइप का ट्रायंगल है वो दिया है. Okay, so we have to match them. Okay, so first three sides of equal length. Okay, अगर तीनों साइड अगर equal है then it is called an equilateral triangle. So where is equilateral triangle? So ये है equilateral. Okay, so we will write here as 1. Okay, ये हमने मैच कर दिया इधर. Okay, next two sides of equal length. Okay, two sides अगर same है, okay, अगर two sides equal है then it is called as an isosceles triangle. Okay, isosceles triangle, एक तो isosceles right angle है वो नहीं है. अगर एंगल का कुछ दिया है तभी हम राइट एंगल दैट इज isosceles right angle लिखेंगे. ओके, इसमें तो साइड्स का दिया है तो सिर्फ isosceles आएगा. ओके, सो isosceles triangle ये है 2. नेक्स्ट ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. सारे जो साइड्स है दैट इज जो सारे जो साइड्स की लेंथ है वो अलग अलग है. अनइक्वल साइड्स. ओके, अनइक्वल साइड्स का क्या होगा? अनइक्वल साइड्स मींस scale and triangle. Okay, so unequal sides scale and triangle we will mark it as 3. Fourth one, 3 acute angles. Okay, अगर acute angles बोल रहे हैं तो 3 acute angles है. तीनों अलग अलग का मेजरमेंट है. That is तीनों का एंगल का जो मेजरमेंट है अलग अलग है. So that is acute angle triangle है. So ये है acute angled. Okay, this is fourth one. Okay, नेक्स्ट वन राइट एंगल. अगर तीन एंगल में से एक राइट एंगल है देन इट इज कॉल्ड एज एन राइट एंगल ट्रायंगल. सो हियर राइट एंगल ट्रायंगल इज हियर. ओके, ये है 5. ओके, नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, एक ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज 90 डिग्री से ज्यादा. ओके, सो अगर एक 90 डिग्री से ज्यादा दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल अगर है तो then it is called as an obtuse angled triangle. Okay, obtuse angled triangle. Okay, ये है this is 6. Okay, next one right angle with two sides of equal length. अगर एक राइट एंगल है एंड टू साइड्स, बाकी दो साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल है. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था. मैं कैसे ड्रॉ करना है, मैंने ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको बताया था. ओके, अगर टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड वन राइट एंगल अगर है देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस राइट एंगल. ओके, सो दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल इज 7. ओके, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कैसे टाइप का ट्रायंगल क्या होता है, उसका मेजरमेंट. एंड अगर साइड्स अलग है बेस्ड ऑन साइड्स, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दैट इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज. ओके, हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल उन्होंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जो फिगर्स दिया है उसको हम 2 वेज में इसका नेम लिखना है. ओके, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, हमें क्या करना है, देख के हमें ऑब्जर्व करके हम ट्रायंगल कौन सी नेचर है, कौन सी टाइप है वो बताना है. ओके, एंड वी हैव टू राइट इट आल्सो. जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो इसका जो मेजरमेंट है दैट इज जो साइज का जो मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. ओके, सो इसका जो साइज क्या है, दो साइड्स इक्वल है. ओके, दो साइड्स इक्वल है एंड तीसरी इक्वल नहीं है. दैट इज टू साइड्स आर इक्वल. अगर टू साइड्स इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, एंड ये देखने में कौन सी ट्रायंगल लग रहा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है. सो फर्स्ट वन इज अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज टू वेज में हमें लिखना है ना. सो सेकेंड वन इज क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल. नेक्स्ट बी, ये देखने में आपको लग रहा है ये राइट एंगल है. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल. अगर एक एंगल 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, सो वन इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल
एंड दूसरा क्या है, दूसरा इसका जो साइड्स है सारे डिफरेंट है। ओके, साइड्स क्या है, सारे डिफरेंट है। बट साइड्स अगर डिफरेंट है सारे, दैट इज अनइक्वल साइड्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल बोलते हैं। बट ये स्केल एंड ट्रायंगल ऐसे नहीं होता है। स्केल एंड ट्रायंगल में राइट एंगल, दैट इज ऐसे राइट एंगल नहीं बनता है। दिस ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, सो उसमें हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकेंड वन इज राइट ट्रायंगल। ओके, बस इतना ही लिखना है। ओके, राइट ट्रायंगल में ऐसे ही होता है। ओके, एंड ये जो मेजरमेंट जो दिया है कंफ्यूजन के लिए दिया है, ताकि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो साइड्स है वो सारे डिफरेंट है। वो स्केल एंड ट्रायंगल में सारे साइड्स डिफरेंट होता है, अनइक्वल होता है। ओके, बट ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। स्केल एंड ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट सी, ये जो है वो ट्रायंगल क्या है, देखने में आपको कौन सी ट्रायंगल लग रहा है, इट इज मोर देन 90 डिग्री, सो दैट इज इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, एंड सेकेंड वन, टू साइड्स आर इक्वल। अगर टू साइड्स इक्वल है देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट डी, ओके, ये एक एंगल राइट, एक एंगल 90 डिग्री का है, सो इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपको पता है। ओके, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देन इसकी जो राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स अगर इक्वल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ओके, अगर टू साइड्स इक्वल है देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, isosceles triangle। ओके, नेक्स्ट ई, कौन सी एंगल का ट्रायंगल है, ये देखने में आपको लग रहा है ना, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, दिस इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड इसका जो मेजरमेंट है वो 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर, दैट इज तीनों साइड्स का इक्वल है। ओके, सो अगर सारे जो साइड्स इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सेकेंड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एफ, ओके, ये कौन सी एंगल का ट्रायंगल, ये देखने से आपको पता चल रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड द सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन द साइड्स के हिसाब से ये तीनों साइड्स अलग अलग है, सो इट इज स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल। ओके, बेस्ड ऑन द एंगल्स एंड बेस्ड ऑन द साइड्स, दोनों हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैचस्टिक्स। ओके, मैचस्टिक्स रख के हमें ट्रायंगल्स बनाना है। एक मैचस्टिक का एक्टिविटी है, वो आप घर पे मैचस्टिक यूज करके आपको क्या करना है, ये बनाना है। ओके, अपने नोटबुक में। ओके, सम आर शोन हियर। ओके, उसमें से कोई एग्जांपल्स उन्होंने दिया है कैसे बनाना है। ओके, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विद, ओके, ये 3 मैचस्टिक 4 मैचस्टिक और भी है। ओके, सो इसमें कंडीशन क्या दिया है, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैचस्टिक्स इन ईच केस। एक एक केस में आपको क्या करना है, जो मैचस्टिक उन्होंने दिया है वो पूरा आपको यूज करके ट्रायंगल बनाना है। ओके, you have to name the type of triangle in each case। okay, एक एक केस में आपको क्या करना है, कौन सी टाइप का ट्रायंगल है वो भी आपको मेंशन करना है। if you cannot make a triangle, think of reasons for it। okay, अगर आप वो मैचस्टिक से ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हो then what you have to do, you have to make the reasons, you have to tell the reason why you are not able to make the triangle with the given matchsticks, you have to mention the reasons also। okay, so इसमें क्या दिया है, ये ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल कितनी मैचस्टिक से बनाया है, 1 2 3 4 5 मैचस्टिक से एक ट्रायंगल बनाया है। ओके, नेक्स्ट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 मैचस्टिक से एक ट्रायंगल बनाया है। ओके, देन इसमें नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमें क्या करना है,
3 मैचस्टिक से एक ट्रायंगल बनाना है। ओके, सो 3 मैचस्टिक हम बनाएंगे, देख लेंगे। ओके, बना के देख लेंगे। 3 मैचस्टिक से आराम से हो जाएगा। ओके, एक मैचस्टिक ऐसे, दूसरा ये है, देन तीसरा ये। ओके, ओके, सो 3 मैचस्टिक्स रख के हमने क्या बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है। 1 2 3, 3 मैचस्टिक्स रख के हमने एक ट्रायंगल बनाया है। वो कौन सी ट्रायंगल है ये? इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। So they have asked whether we can make triangle with the 3 matchsticks or not. Okay, yes, we can make. Okay, yes, we can make an equilateral triangle with कितनी मैचस्टिक है? with 3 मैचस्टिक्स। 3 मैचस्टिक्स से हमने क्या बनाया है? एक दैट इज ट्रायंगल बनाया है। ओके, नेक्स्ट 4 मैचस्टिक से बनाना है। 4 मैचस्टिक से आपको ट्रायंगल बनाना है। वो कैसे बना पाएंगे आप? 4 मैचस्टिक से अगर आप बनाओगे तो भी एक ऐसे, ओके, एक ऐसे बनाओगे, दूसरी ऐसे बनाओगे, ओके, तीसरी अगर ऐसे बनाओगे, ओके, देन ऐसे बनाओगे तो ये क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर ट्रायंगल को हम रखेंगे तो भी, ट्रायंगल अगर ऐसे रखेंगे तो भी क्या होगा? ये तीसरी जो मैचस्टिक है वो बाहर रखेंगे हम। ओके, उसके लिए एक और मैचस्टिक चाहिए, तभी एक और आप ट्रायंगल बना पाएंगे। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, 4 मैचस्टिक से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। नो, वी कैन नॉट make a triangle using 4 matchsticks. So they have asked the reason. Okay, अगर नहीं बना पाएंगे तो क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि since the sum of any 2 sides must be greater than the third, which is not possible here. Okay, इसमें क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अगर 3 मैचस्टिक से तो बना सकते हैं, 4 मैचस्टिक से क्यों नहीं बना पा रहे हैं? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ओके, कोई भी 2 साइड्स, ओके, अगर ये 2 साइड्स अगर लेंगे 1 2, ओके, कोई भी 2 साइड्स अगर लेंगे मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड। ओके, थर्ड से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो विच इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, इसमें नहीं बना सकते दैट इज इसमें 2 मैचस्टिक तो नहीं रख सकते हैं। ओके, एक ही मैचस्टिक रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो वो शेप अलग आ जाएगा। ओके, सो 4 मैचस्टिक से कुछ और शेप बनेगा, नहीं तो कुछ दैट इज ऐसे शेप बनेगा। This is the reason. Okay, the sum of any 2 sides must be greater. वो ज्यादा होना चाहिए, 2 साइड से दूसरी थर्ड साइड ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये बना सकते हैं, ये तो नहीं बना सकते, which is not possible here. So we cannot make a triangle using 4 matchsticks. Okay, next C. Okay, 5 matchstick से हमें ट्रायंगल बनाना है। Okay, 5 matchstick. Okay, ये भी एक 5 matchstick का ही बनाया है। Okay, okay, एक तो ऐसे बनाएंगे। Okay, एक मैचस्टिक ये है, दूसरा 2 3 4 5। ओके, सो 5 मैचस्टिक हमने बना दिया है। ओके, विथ 5 मैचस्टिक वी हैव मेड अ ट्रायंगल। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, एन आइसोसेलेस triangle can be made using 5 matchsticks. 5 matchsticks से हम एक isosceles triangle बना सकते हैं। Next we have to make a triangle using 6 matchsticks. Okay, 6 matchstick use करके हमें एक triangle बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक ऐसे, then दूसरा 2, okay, 1 2 हो गया है। 1 2 3 4 4 हो गया है, देन 5
देन 6, ये 6th वन है। ओके, सो 6 मैचस्टिक से हमने एक ट्रायंगल बनाया है, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस, एन इक्विलैटरल triangle can be made using 6 matchsticks. 6 मैचस्टिक से हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है एंड 5 मैचस्टिक से हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.6। ओके, होप द एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर टू यू। ओके, ये जो मैचस्टिक का एक्टिविटी है आप मैचस्टिक यूज करके घर पे बनाएंगे। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 and you can check the link for the previous video and other parts of chapter 5 also. Please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.